Good afternoon, standard 10 students. Sorry, actually, you're in 11. All of you have reached standard 11, and your results of standard 10 are still pending. As you all got to know, tomorrow, 3 p.m., which is 24th of July, tomorrow, 3 p.m., 24th of July, your results will be declared. Okay? The results which will be declared, you can get access to those results at the council's website. Okay, and for that you will be needing your unique UID number, unique identification number. Normally the UID number or the unique identification number is available in your admit card. Since all of you have not received your admit cards till now, so you can contact your school teachers. They will provide you with the UID number, and using that UID number, you can access your results. So contact with your school teachers and make sure that tomorrow before 3 p.m. you have your UID numbers. Okay, and there's no need to panic even if you're not having your UID number. Even if you're not having your UID number, you can wait. Your school authorities will check your results and they will let you know. So there is no need of any panic, even if you're not getting your UID number. Now, how will your marks be calculated? That's a very, very interesting topic. So I'm making a small video for this. Okay, how your marks will be calculated. See, only for ICSC. If you both want, you can leave the class. अभी जा सकते हो तुम लोग. तो ग्रुप में देखना कितना क्या डिस्कस होगा आज. Now, this is the council's letter dated 17th June. Scheme for the ICSC and ISC year 2021 examinations. We are bothered only about standard 10 ICSC. Okay. Now see, what data your school will be using for your marks. Your data that the school will be using will be best marks of standard 9 and 10. Best average marks. See, it's written the average marks of subjects scored by the candidates in various tests or examinations conducted by the school at classes 9 and 10. So what the council has done, council has taken your marks of standard 9 and 10, average marks of each and every subject, okay, subject wise. For example, physics, chemistry, bio are one subject, science. So they have taken science average, history, geography ka average, okay, English ka average in the year 1920 and 2021. That means your standard 10 and standard 9 average marks, not your pre marks, not your first term, average marks of standard 9 and 10, they have been sent to the council. मतलब 9 का एवरेज मार्क्स 10 का एवरेज मार्क्स दो कॉलम में गया है, एक 9 का एवरेज मार्क्स और एक 10 का एवरेज मार्क्स. ये काउंसिल के पास स्कूल्स ने सेंड कर दिया. एंड योर इंटरनल असेसमेंट मार्क्स. इंटरनल असेसमेंट मीन्स your project and practical. Okay, for maths you have made a project, maths, physics, chemistry में आपका practicals होगा, English में आपका क्या था, oral जो था language में, ठीक है. तो whatever was your internal assessment marks, that is the project marks and practical marks, these data have been sent to the various have been sent by various schools to the council. Okay, अब व्हाट इज द मेथड फॉर योर मार्क्स. मेथड के लिए आ जाते हैं हम लोग पेज नंबर 6 में. नाउ फैक्टर्स यूज्ड इन कंप्यूटेशन. बिफोर यू अंडरस्टैंड दिस फैक्टर्स यूज्ड इन कंप्यूटेशन, you have to understand one thing, that is standard deviation. You have to understand what is standard deviation. स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपका मार्क्स कैसे कैलकुलेट हुआ. तो पहले एक छोटा सा एग्जांपल से समझते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है. किसी भी मार्क्स का हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं. जैसे आप लोग ने सीखा होगा मीन, मीडियन, मोड कैसे निकलता है, वैसे ही स्टैटिस्टिक्स में एक निकलता है स्टैंडर्ड डेविएशन. योर मार्क्स आर मोर और लेस डिपेंडेंट ऑन दिस स्टैंडर्ड डेविएशन.
ठीक है, बहुत ही यूनिक मेथड है। सबसे पहले क्या देखा गया, देखिए आपको शॉर्टकट पहले बताते हैं, तभी समझने में इंटरेस्टिंग लगेगा। लास्ट 5 ईयर्स में आपके स्कूल का कौन सा बेस्ट ईयर ऑफ परफॉर्मेंस था? स्कूल का बेस्ट परफॉर्मेंस, फॉर एग्जाम्पल स्कूल का परफॉर्मेंस इज नॉट जज्ड बाय द हाईएस्ट मार्क्स या टॉपर, स्कूल का परफॉर्मेंस इज जज्ड बाय द एवरेज मार्क्स। मतलब क्या किया गया, हर साल में 2015, 2015, 16, 17, 18, 19, 20, ओके, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये जो 5 ईयर्स हो गया, ये 5 ईयर्स का हर स्कूल का एवरेज मार्क्स देखा गया। और हर स्कूल के लिए कौन सा बेस्ट ईयर है? हो सकता है केएसएमएस के लिए बेस्ट ईयर 18 हो, इसमें एवरेज परसेंटेज 80% था। एवरेज परसेंटेज कैसे निकलेगा? मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सपोज लोयला, फॉर लोयला दी बेस्ट ईयर इज 19, 85%। हो सकता है फॉर तारापुर द बेस्ट ईयर इज 16, फॉर आरवी इट इज 17। तो हर स्कूल का अपना अपना बेस्ट ईयर निकलेगा, और बेस्ट स्कूल का बेस्ट ईयर के हिसाब से स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट होगा। ठीक है, अब ये स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले अभी हम लोग सीख रहे हैं व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन, थोड़ा सा ये जानना जरूरी है। ओनली देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ये मेथड क्या है मार्क्स निकालने का। दिस अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला, कैन यू सी दिस फॉर्मूला? ये फॉर्मूला इज A इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन बाई S इंटू P रॉ माइनस M प्लस म्यू। वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला, बट आप स्टैंडर्ड डेविएशन समझ जाओगे तो ये बहुत ही आसान लगेगा फॉर्मूला। ठीक है, देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलता है। सपोज ये मार्क्स है 40, 42, 38, 44, 46, 48, 50। सपोज ये आउट ऑफ 50, सपोज आउट ऑफ 50 ये मार्क्स है किसी भी स्टूडेंट, ये आप मान लीजिए कि इंग्लिश में या मैथ्स में ये मार्क्स दिया आउट ऑफ 50। अब इस मार्क्स का स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलता है? स्टैंडर्ड डेविएशन इसलिए बता रहा हूं मैं आपको बिकॉज स्टैंडर्ड डेविएशन इज इंपॉर्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ दिस फॉर्मूला। ओके, तो हाउ टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन? तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कैसे होगा, इसका फॉर्मूला हो गया, सबसे पहले क्या करेंगे, इसका मीन निकालेंगे। बताओ व्हाट इज द मीन ऑफ दीज मार्क्स? जस्ट अ मिनट, थोड़ा वीडियो फोकस हो रहा है, 1 मिनट। जस्ट अ मिनट। Now listen, before I explain you the method for calculating your marks, you need to understand what is standard deviation. Okay, standard deviation कैसे निकलता है? किसी भी डेटा का स्टैंडर्ड डेविएशन निकल सकता है। जैसे हम लोग मीन निकालते हैं, मीडियन निकालते हैं, मोड निकालते हैं, वैसे वी आर एबल टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन। सपोज दिस इज मार्क्स आउट ऑफ 50, सपोज ये मार्क्स आउट ऑफ 50 है, चलो 50 आउट ऑफ 100 ही करते ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए इजी रहेगा। Suppose the marks is 80, 84, 76, 88, 92, 96 and 50. This is the marks of suppose 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 students. Sorry, 100. Out of 8 students ये marks दिया हुआ है। 8 students का marks है 80, 84, 76, 88, 92, 96, 100। ये 8 students का marks है। आपको इस marks का standard deviation चाहिए। You need the standard deviation of these marks. Standard deviation will help you to calculate your marks. Marks of the individual candidate depends on the standard deviation of the marks of all candidates. समझ में आया क्या बोला मैंने? कि एक कोई भी इंडिविजुअल कैंडिडेट का मार्क्स जो है वो डिपेंड करता है कि बाकी बच्चों का मार्क्स का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलता है? क्विकली टेल मी द टोटल ऑफ दिस, क्विकली टेल मी द टोटल ऑफ दिस।
इसका टोटल कितना आ रहा है? 80 प्लस 84, 76, 88, 92, 96 एंड 100, 616 डिवाइड बाई कितने थे? 1 2 3 बाई 7. व्हाट इज द एवरेज? एवरेज इज 88, टोटल इज 616. समेशन ऑफ x, इसको बोलेंगे x. Summation of x is 616. So what is mean? What is the average marks? 88 is the average marks. For these 7 candidates, the average marks is 88. Then we find deviation. What is deviation? X minus mean. मतलब कि deviation का मतलब ये होता है कि मार्क्स का डेविएशन का मतलब ये होता है कि जो मार्क्स आया वो एवरेज से कितना आगे पीछे है. 80 माइनस 88, बताइए. 80 माइनस 88 माइनस 8, 84 माइनस 88 माइनस 4, 76 माइनस 88 माइनस 12, 88 माइनस 88 0, 92 माइनस 88 4, 96 माइनस 88 कितना? 8, 100 माइनस 88 12. इसको हम लोग क्या लिखते हैं? डी. क्या ये? डी, डेविएशन. देन वी फाइंड आउट डेविएशन का स्क्वायर. देन वी फाइंड आउट डेविएशन का स्क्वायर. ये डेविएशन का स्क्वायर क्या बताओ? 64, 16, 144, 0, 16, 64, 144. टोटल कितना? टोटल बताइए. What is the total of this deviation? 448. क्या डेविएशन का टोटल कितना है? 448. डेविएशन का टोटल कितना है? 448. What is standard deviation? Standard deviation is under root summation of d square by n. Standard deviation is under root summation of d square by n. मतलब यहाँ पे अंडर रूट 448 बाई 7 अंडर रूट 64 यानी कि 8. समझ में आया? स्टैंडर्ड डेविएशन 8 कैसे आया? 8 क्या है? दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डेटा. स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डेटा. डेविएशन का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल क्लास में सब एवरेज मार्क्स 88 है, मेरा 96 आया, तो हम एवरेज से कितना ज्यादा है? तेरा 72 आया, तुम एवरेज से कितना कम है? तो हम लोग डेविएशन में ये देखते हैं कि जो डेटा है उसका स्प्रेड क्या है. स्प्रेड का मतलब कि वो एवरेज से कितना इधर उधर चल रहा है. ये अगर मान लो एवरेज है, ये एवरेज है, तो एवरेज से कितना ऊपर नीचे चल रहा है. स्टैंडर्ड डेविएशन इज एक्चुअली द स्प्रेड ऑफ डेटा. क्लियर? यहां पे समझ में आया? स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेशन इज क्लियर टू यू ऑल? दिस इज अ स्टैटिस्टिकल टूल. ये स्टैटिस्टिक्स में यूज करते हैं, बहुत सारे पर्पस है इसके लिए. स्टैंडर्ड डेविएशन आपको अगर नहीं समझ में आएगा तो आपको मार्किंग स्कीम समझ में नहीं आएगा. तो ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड स्टैंडर्ड डेविएशन, तो भेज दो वाई का मैसेज जूम चैट पे. चलिए, so most of you understood what is standard deviation. Now अब आपको देखना, अब आपको मैं स्टेप बता रहा हूं कि क्या क्या स्टेप्स है, किसके थ्रू मार्किंग निकाला जाएगा. ठीक है? नाउ लेट्स कम टू द काउंसिल्स लेटर, जहां पे दिस विल टेक टाइम बिकॉज ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. ओके, चलिए. फैक्टर्स यूज्ड इन कंप्यूटेशन. बेस्ट ईयर ऑफ स्कूल. From among the overall result of a school in the ICSE years 2015 to 2020, restricted only to those years when at least 10 candidates appeared for. ये आपके काम का नहीं है. मतलब बोला कि उसी साल का रिजल्ट हम लोग लेंगे, हम लोग उसी साल का रिजल्ट लेंगे जहां पे एटलीस्ट 10 स्टूडेंट्स ने अपियर किया काउंसिल एग्जाम के लिए. तो ऑल ऑफ यू बिलोंग टू बिग स्कूल्स जहां पे
बहुत सारे बच्चे हैं, कोई कोई ऐसा छोटा मोटा स्कूल होता है जहाँ पर कि 10 से कम स्टूडेंट अपीयर करते हैं, तो वैसा के लिए आपको ये पॉइंट आपके किसी काम का नहीं है। ओके, अब देखो आगे, द बेस्ट ईयर फॉर स्कूल फॉर दिस स्कूल विल बी द ईयर when the school achieved the best percentage in terms of the total score। तो सबसे पहले क्या होगा, स्कूल का बेस्ट परसेंटेज ईयर सेलेक्ट करना है। पहला स्टेप, पहला स्टेप क्या है, स्टेप 1, सेलेक्ट द बेस्ट ईयर ऑफ स्कूल्स रिजल्ट। ऑब्वियसली आप लोग स्कूल का रिजल्ट आपके पास तो नहीं है, तो ये आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है, ये आपके कंट्रोल में नहीं है, बिकॉज आपके पास स्कूल का बेस्ट, स्कूल का 5 साल का रिजल्ट आपके पास थोड़ी है। तो आपको ये देखना है कि बेस्ट, मतलब ये आपको मेथड समझा रहे हैं कि काउंसिल कैसे आपको मार्क्स देगा, कल जो आपको मार्क्स मिलेगा वो किस तरीके से कैलकुलेटेड रहेगा, ठीक है। तो आपका सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप ये हो गया, यू हैव टू कैलकुलेट सेलेक्ट द बेस्ट ईयर ऑफ स्कूल्स रिजल्ट फ्रॉम 2015 टू 2020। देन जो बेस्ट ईयर सेलेक्ट हुआ है, जो बेस्ट ईयर सेलेक्ट हुआ है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मार्क्स, जो बेस्ट ईयर सेलेक्ट हुआ है, देखिए जो बेस्ट ईयर सेलेक्ट हुआ होगा उसमें कैंडिडेट्स का मार्क्स होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मार्क्स ऑफ ऑल कैंडिडेट्स इंग्लिश प्लस बेस्ट 4। सबसे पहले क्या होगा, आपका स्कूल का, आपके स्कूल का बेस्ट ईयर ऑफ रिजल्ट देखा जाएगा। फॉर एग्जांपल आप तारापुर में, तो आपका बेस्ट ईयर कुछ हो सकता है 16 हो, या कोई केसमेस में तो उसका बेस्ट ईयर 18 हो, लॉयला का सपोज बेस्ट ईयर 19 हो, तो हर स्कूल का अपना अपना एक बेस्ट ईयर सेलेक्ट हो जाएगा। बेस्ट ईयर सेलेक्ट करने के बाद जो बेस्ट ईयर सेलेक्ट हुआ है उस ईयर में इंग्लिश प्लस बेस्ट 4 में कैंडिडेट सबका मार्क्स लिखा जाएगा परसेंटेज में। मान लो कि देयर 200 कैंडिडेट्स, तो रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 करते करते 200 कैंडिडेट्स का मार्क्स लिखा जाएगा और उन मार्क्स का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला जाएगा। इंग्लिश, ये मार्क्स इंग्लिश प्लस बेस्ट 4 का परसेंटेज निकाला जाएगा हर बच्चे का। तो जो बेस्ट ईयर सेलेक्ट होगा उस बेस्ट ईयर का इंग्लिश प्लस बेस्ट 4 का हर कैंडिडेट का मार्क्स को एक जगह लिखा जाएगा, ठीक है। बेस्ट ईयर सेलेक्ट हुआ, उसके बाद इंग्लिश प्लस बेस्ट 4 का परसेंटेज सब 200 कैंडिडेट्स का लिखा जाएगा और इसका फिर स्टैंडर्ड डेविएशन निकलेगा। ओके, दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। समझ में आया? स्टेप 1 स्टेप 2 क्लियर। सबसे पहले स्कूल का बेस्ट ईयर सेलेक्ट हो गया और उस बेस्ट ईयर में सब बच्चों के मार्क्स का, सब बच्चों कौन सा मार्क्स, इंग्लिश प्लस बेस्ट 4 का परसेंटेज। आप बोलते ना मेरे को 92% आया, मेरे को 93 आया, इंग्लिश प्लस बेस्ट 4 का परसेंटेज उस सब का, मींस योर मार्क्स आर डिपेंडिंग ऑन योर सीनियर्स एज वेल, ठीक है, उनका स्टैंडर्ड डेविएशन लिया जाएगा। क्लियर, समझ गए? तीसरा स्टेप, सब्जेक्ट वाइज एवरेज परसेंटेज ऑफ स्कूल। हर सब्जेक्ट में, हर सब्जेक्ट में जो बेस्ट ईयर है, जो बेस्ट ईयर है उसमें हर सब्जेक्ट वाइज एवरेज स्कोर देखा जाएगा। नहीं, जो बेस्ट ईयर है उसका, स्कूल का बेस्ट ईयर है। अभी तक आप लोगों का कहानी शुरू नहीं हुआ है, अभी तक आप लोग कहानी शुरू नहीं हुआ है, ये सब बेस्ट ईयर का चल रहा है। पहला स्टेप है बेस्ट ईयर सेलेक्ट करना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ना। पहला स्टेप है कि स्कूल का जो बेस्ट ईयर है वो सेलेक्ट हो गया। दूसरा स्टेप में जो बेस्ट ईयर है उसमें इंग्लिश प्लस बेस्ट 4 का सारा कैंडिडेट्स का मार्क्स लिया गया और मार्क्स का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला गया इस मेथड से जो मैंने आपको बताया। ओके, ये स्टैंडर्ड डेविएशन को ये सिंबल दिया गया। अब सब्जेक्ट वाइज एवरेज परसेंटेज ऑफ स्कूल, मतलब जो बेस्ट ईयर था,
जो बेस्ट ईयर था उसमें मैथ्स में कितना परसेंटेज, मान लो 80% है, फिजिक्स में सपोज 70% होगा, इंग्लिश में सपोज 85% होगा, बायो में सपोज 60% हो सकता है। तो हर सब्जेक्ट वाइज एवरेज परसेंटेज ऑफ स्कूल हैज बीन टेकन। समझ में आया? अभी तक ये सिर्फ स्कूल का चल रहा है, आपका कुछ आया नहीं अभी तक इसमें। ये आपके प्रीवियस 5 साल के बैच का है। यहां तक समझ में आया? इसको क्या बोला गया? म्यू। ये क्या है? म्यू। ओके। अब स्टेप 1 2 3 इज क्लियर टू एवरीवन? ये स्टेप 1 2 3 ये आपका नहीं है, ये प्रीवियस बैचेस का है। आई होप सबको यहां तक समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, अब आते हैं आपके मार्क्स पे। अब आते हैं ईयर 2021। ईयर 2021। अब आपका फोर्थ स्टेप क्या है? स्टूडेंट्स बेस्ट मार्क्स ऑफ ईच सब्जेक्ट ऑफ 9/10। 9 या 10 में आपका पर सब्जेक्ट 9 या 10 में जो हाईएस्ट मार्क्स है एवरेज, वो लिया जाएगा। मतलब कि 9 का एवरेज, 9 का फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म का एवरेज और 10 का फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म का एवरेज, दोनों में से जो बेस्ट होगा वो लिया जाएगा। वॉट एवर इट वॉज, प्री बोर्ड और थर्ड टर्म फर्स्ट टर्म, वॉट एवर इट वॉज कॉल्ड, बेस्ट मार्क्स ऑफ ईच सब्जेक्ट ऑफ स्टैंडर्ड 9 और 10, 9 या 10 दोनों में से जो भी आपका बेस्ट मार्क्स है वो लिया जाएगा। इसको बोला गया है पी रॉ। ठीक है, पी रॉ। अब आपको ना इतना कैलकुलेशंस नहीं बताते, आपको हम डायरेक्टली एग्जांपल के समझाते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट समझ में आया आइडिया क्या स्टैंडर्ड डेविएशन क्या चल रहा है? ठीक है, चलिए देखिए, सपोज द स्कूल अचीव द हाईएस्ट स्कूल एवरेज इन ईयर 19। स्कूल का 2019 में उसका बेस्ट ईयर था। सपोज आपके स्कूल का बेस्ट ईयर 2019 था। ठीक है, तो आपके लिए क्या है, बेस्ट ईयर 19 चलेगा और जो 19 को ही यूज किया जाएगा बाकी कैलकुलेशन में। ओके, suppose in the year 19 the standard deviation of the percentage based on total score out of 500 है ना, obtained by all candidates was 9। मतलब ये बोल रहा है कि सपोज आपका बेस्ट ईयर क्या है स्कूल का, 2019 है और 2019 में सब बच्चों के मार्क्स का स्टैंडर्ड डेविएशन 9 है। ठीक है, ये दो कैलकुलेशन कहां से आएगा? ये दो कैलकुलेशन स्कूल प्रोवाइड करेगा। ठीक है, काउंसिल ने सारा डेटा, सारा काउंसिल के पास में, काउंसिल उस डेटा को यूज करके स्कूल का बेस्ट ईयर निकाल लेगा और उस बेस्ट ईयर के अंदर स्कूल के सभी बच्चों का स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्क्स निकाल लेगा। ओके, देन सपोज वी ऑब्जर्व, अब मान लेते हैं उस स्कूल में एवरेज मार्क्स मैथमेटिक्स में आया था 70 उस ईयर में। ठीक है, चलिए स्कूल का बेस्ट ईयर क्या चल रहा है? अगर स्कूल का बेस्ट ईयर 2019 है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ऑल मार्क्स 2019 के सब बच्चों का मार्क्स का स्टैंडर्ड डेविएशन सपोज 9 है, सपोज क्या है, 9 है, और एवरेज मार्क्स अगर मैथ्स में 78 है, ये कौन से ईयर का? बेस्ट ईयर का। ये तीन डेटा आपका मार्क्स डिसाइड करेगा। क्लियर? स्कूल का बेस्ट ईयर 19 था सपोज, और 19 में सब बच्चों के मार्क्स का स्टैंडर्ड डेविएशन जो था वो 9 था और एवरेज मार्क्स क्या था? 78 था। मैथ्स में हर सब्जेक्ट का एवरेज निकलेगा, मार्क्स इंडिविजुअल सब्जेक्ट का ही दिया जाएगा आपको, मार्क्स आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट का दिया जाएगा, लेकिन जो स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करेंगे वो टोटल पे करेंगे। ओके, बताइए
तो एवरेज मार्क्स क्या है मैथ्स का? 78 है। एवरेज मार्क्स क्या है मैथ्स का? 78 19 का। सपोज अब यहां देखिए, सपोज सिमरन, अब हम बात करते हैं सिमरन का मैथ्स मार्क्स के बारे में। ठीक है, सपोज यहां पर हम देखते हैं सिमरन। अब सिमरन का जो मार्क्स है क्लास 9 में शी हैज गॉट 90% इन मैथमेटिक्स, एंड स्टैंडर्ड 10 में शी हैज गॉट 80% इन मैथमेटिक्स। In class 9, Simran has got 90% in mathematics, and in 10 she has got 80% in mathematics. ठीक है, तो what is the best? What is the best? Best क्या है इसमें से? तो 9 और 10 का बेस्ट देख लेगा। ओके, तो आप सभी का हर सब्जेक्ट का, ये मैथ्स का था, हर सब्जेक्ट का 9 और 10 का बेस्ट देखा जाएगा कि 9 और 10 में से आपको बेस्ट किस में आया। हर सब्जेक्ट का 9 और 10 का आपका बेस्ट देखा जाएगा। क्लियर? उसके बाद सपोज द प्रोजेक्ट मार्क्स, suppose the project marks she has got is 20 out of 20. Just a minute. चलिए, तो मैंने बताया कि सिमरन का अगर मान लीजिए क्लास 9 में शी हैज गॉट 90% एंड क्लास 10 में शी हैज गॉट 80%, तो क्या देखा जाएगा? बेस्ट। बेस्ट कितना है? 90%। प्रोजेक्ट मार्क्स कितना है? 20 आउट ऑफ 20। सपोज ये एग्जाम्पल लेके हम चल रहे हैं, ये एग्जाम्पल के थ्रू आपको देखना है कैसे मार्क्स निकलेगा आगे। ओके, नाउ अब निकालेंगे रॉ मार्क्स। ये 90% और ये 20 आउट ऑफ 20 से रॉ मार्क्स निकलेगा। रॉ मार्क्स कैसे निकलेगा? 90 इंटू 0.8, 90 इंटू 0.8 प्लस 20। कैसे मार्क्स निकला यहाँ पे? 90 इंटू 0.8 प्लस 20, 90 इंटू 0.8 प्लस 20 कितना हो गया? 92। तो 90 का 92 नहीं होगा, वेट वेट वेट, दिस इज रॉ मार्क्स, दिस इज रॉ मार्क्स। हाँ, तो व्हाट आई वाज सेइंग, देखो यहाँ पे कि अगर सिमरन का 90% मैथ्स में आया स्टैंडर्ड 9 में और 80% आया स्टैंडर्ड 10 में, तो बेस्ट क्या हो गया? 90%। अब इसको रॉ मार्क्स निकाला जाएगा, 90 इंटू 0.8 प्लस 20 विच इज 92, 90 इंटू 0.8 प्लस 20, 0.8 की मतलब इसको 80% में कन्वर्ट कर दिए, 90% जो मार्क्स है उसको 80 में कन्वर्ट कर दिए, 90 इंटू 0.8 प्लस प्रोजेक्ट का 20 मार्क्स, तो 92 इज द रॉ मार्क्स। अब लेकिन रॉ मार्क्स आ गया, अब क्या करेंगे? हर स्टूडेंट का रॉ मार्क्स निकाला जाएगा, हर स्टूडेंट का रॉ मार्क्स निकाला जाएगा। अब एक आएगा एम। एम क्या होता है? एवरेज रॉ मार्क्स ऑफ एवरी स्टूडेंट। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज, सब्जेक्ट वाइज हर सब्जेक्ट का एम निकलेगा, हर सब्जेक्ट का रॉ मार्क्स का एवरेज निकल जाएगा। ठीक है, मतलब जैसे मैंने सिमरन का यहाँ पे निकाला कि 9 का 90% था, 10 का 80% था, सिमरन का मैंने रॉ मार्क्स निकाला, वैसे ही हर स्टूडेंट का, हर स्टूडेंट का सब ये रॉ मार्क्स निकल जाएगा सब्जेक्ट वाइज। ओके, एंड उसका एवरेज इज कॉल्ड एम। उसका एवरेज क्या है? एम। आ रहा कम आ रहा है, चलिए, तो मैंने क्या बताया आपको कि फॉर एवरी स्टूडेंट वी विल कैलकुलेट द रॉ मार्क्स। हर स्टूडेंट का सब्जेक्ट वाइज रॉ मार्क्स मिल जाएगा, हर स्टूडेंट का सब्जेक्ट वाइज रॉ मार्क्स मिल जाएगा, और उन रॉ मार्क्स का जो एवरेज है दैट इज कॉल्ड एम। एम क्या है? एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट। मतलब आपका इस बार का, ये 2021 का इस बार का आपका मार्क्स और आपके सारे फ्रेंड्स का एवरेज मार्क्स।
क्लियर? आपका मार्क्स हो गया पी रॉ, और आपके स्कूल में सभी बच्चों का जो एवरेज मार्क्स है वो एम। अब एक और चीज यहां पर निकलेगा, इसको बोलेंगे एस। एस क्या हो गया? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्क्स इंग्लिश प्लस बेस्ट 4 ऑफ ऑल कैंडिडेट्स ऑफ करंट ईयर 2021। जैसे हम लोग बेस्ट ईयर का सब बच्चों का मार्क्स लिए थे और सब बच्चों का मार्क्स का हम लोग निकाले थे स्टैंडर्ड डेविएशन, तो इस साल का भी सब बच्चों के रॉ मार्क्स का क्या निकल जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन। समझ में आया सभी को क्या क्या पैरामीटर निकल रहा है? वापस से एक चीज एक बार रिवाइज कराते, ठीक है? चलिए, सबसे पहले क्या हो गया? स्कूल का बेस्ट ईयर। बस 5 मिनट और लगेगा, थोड़ा ध्यान से समझिए। स्कूल का बेस्ट ईयर सपोज 2019 आया, एंड 2019 में सभी बच्चों के मार्क्स का क्या निकाले हम लोग? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ इंग्लिश प्लस बेस्ट 4 मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स 2019 का बेस्ट ईयर। देन क्या किया गया? एवरेज मार्क्स ऑफ ईच सब्जेक्ट स्कूल वाइज ऑफ बेस्ट ईयर। क्लियर? ये निकाला गया, ये सब यहां तक सबको क्लियर था ना कि आपका स्कूल का बेस्ट ईयर देखा गया। आपका स्कूल का बेस्ट ईयर देखा गया। स्कूल के बेस्ट ईयर में इंग्लिश प्लस बेस्ट 4 में जो स्टूडेंट्स का मार्क्स था उसका स्टैंडर्ड डेविएशन। उसके बाद सब्जेक्ट वाइज हर मार्क्स का एवरेज लिया गया। फिर रॉ मार्क्स कैसे कैलकुलेट हुआ? बेस्ड ऑन योर 9 and 10 बेस्ट परफॉर्मेंस प्लस प्रोजेक्ट। आपका 9 और 10 में अगर सपोज मैथ्स में 90% वॉज द बेस्ट मार्क्स, तो 90 इंटू 0.8 प्लस सपोज योर मार्क्स प्रोजेक्ट मार्क्स वॉज 20, सो इट इज 92। तो आपको लग रहा है मेरे को 92 आएगा, बट ये कैलकुलेशन ऐसा करेगा भी ये लोग कि आपका मार्क्स 92 से कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। फिर क्या निकालेंगे हम लोग यहां पे? एवरेज मार्क्स ऑफ ईच सब्जेक्ट एवरेज मार्क्स ऑफ ईच सब्जेक्ट इन करंट ईयर। रॉ मार्क्स आपका मार्क्स है, करंट ईयर में आपका क्या मार्क्स आया? एम क्या है? एम वो मार्क्स है जो कि एवरेज आया सब्जेक्ट वाइज। मैथ्स में आपके स्कूल में एवरेज क्या चल रहा है इस साल का। और 6 क्या आया? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्क्स इंग्लिश प्लस बेस्ट 4 ऑफ ऑल कैंडिडेट्स ऑफ योर स्कूल इन करेंट ईयर। समझ गए? अब देखिए, आपका रॉ मार्क्स 92 चल रहा था, तो ये 92 क्या बन जाएगा? ये 92 88 भी बन सकता है, और 92 भी रह सकता है, और चेंज भी हो सकता है। सपोज आपके स्कूल का स्टैंडर्ड डेविएशन 2019 का या 18 का या 17 का जो भी बेस्ट ईयर है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन सपोज आया 9। ओके, योर रॉ मार्क्स इज 92। एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल कैंडिडेट्स सपोज 76 है, सपोज क्या 76 है, एंड बेस ईयर में
बेस ईयर में एवरेज मार्क्स सपोज 70 था और करेंट ईयर में स्टैंडर्ड डेविएशन सपोज 12 है, ये 5 फैक्टर पे आपका मार्क्स डिपेंड करेगा। जो बेस्ट ईयर था, बेस्ट ईयर में मार्क्स का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या था, सपोज 9। फॉर्मूला क्या दिया है इसने, स्टैंडर्ड डेविएशन बाई एस पी रॉ माइनस एम प्लस म्यू। सपोज बेस्ट ईयर में जो सब बच्चों का मार्क्स था उसका स्टैंडर्ड डेविएशन था 9, इस साल जो मार्क्स आया है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन है 12। आपका रॉ मार्क्स, आपका सिमरन, आपका मार्क्स 92 है मैथ्स में, और सब बच्चों का एवरेज इस साल क्या है, 76 है। और बेस ईयर जो बेस्ट ईयर था, बेस्ट ईयर में एवरेज मार्क्स था 70। कितना आएगा आपका मार्क्स, 9/12 इंटू 16 प्लस 70, जो मार्क्स कितना जा रहा है यहाँ पे, सपोज 78 लेते इसको, सपोज 78, सपोज ये 78 है, स्कूल का मार्क्स कितना है, 78 है एवरेज। 92 माइनस 78 इंटू 9/12 प्लस 70, कितना है प्लीज चेक करो उसको, व्हाट हैपेंड, कितना आ रहा है, 82 श्योर, 78 लेके सेंसिस लेके श्योर है, पर नहीं कुछ गलती करे आप लोग। 92 माइनस 78 इंटू 9/12 प्लस 70, 81 आ रहा है ये 81 आया। अब मार्क्स 81 है, नहीं 81 भी आपका मार्क्स नहीं है, 81 ये ए है, तो आपका मार्क्स कैसे निकलेगा। अब आप क्या करेंगे, 0.7 इंटू ए प्लस 0.3 इंटू बी, मार्क्स इज 0.7 इंटू ए प्लस 0.3 इंटू बी, 0.7 इंटू 81 plus 0.3 into B. What is B? B is your project marks. B is your, that means project has been given the weightage 30%. 0.7 into A plus 0.3 into B. कितना आ रहा देखिए, चेक करिए, 81 into 0.7 plus 20 into 0.3, प्लीज चेक। नहीं, प्रोजेक्ट मार्क्स को आपको 100 लेना है, प्रोजेक्ट मार्क्स 100 क्यों लेना है, बिकॉज 20 में 20 आया मतलब 100% ना, ये भी परसेंटेज में, ये भी परसेंटेज में, प्रोजेक्ट मार्क्स 20 नहीं, प्रोजेक्ट मार्क्स 100 लेंगे। अगर प्रोजेक्ट में 19 आया तो 19/20 इंटू 100 95% हो जाएगा। प्रोजेक्ट मार्क्स को आपको परसेंटेज में लेना है, प्रोजेक्ट मार्क्स को आपको परसेंटेज में लेना है। 0.3 कितना आ रहा है, 86.7 इंक्रीज हो गया ना, प्रोजेक्ट का वेटेज बढ़ाने से ये मार्क्स इंक्रीज करेगा। 0.7 इंटू ए, सबसे पहले ये वाले फॉर्मूला से हमको ए मिल जाएगा। ए डिपेंड करता है आपके रॉ मार्क्स पे, एवरेज मार्क्स पे, स्कूल का स्टैंडर्ड डेविएशन, इस साल का, पिछले साल का, ओके। एंड आपका ए जो है, ए का 70% और बी का, प्रोजेक्ट मार्क्स अगर आपका 20 है तो 20 मतलब 20 ऑन 20 100%, अगर 19 है तो वो 95% है, 18 है तो वो 90% है, प्रोजेक्ट में 16 है तो वो 80% है। प्रोजेक्ट को भी हम परसेंटेज में ले लिए। अभी रुक जाइए, ये भी आपका मार्क्स नहीं है, आपका मार्क्स क्या है, फाइनल मार्क्स। फाइनल मार्क्स क्या होगा, 86.7 इंटू 0.8 प्लस प्रोजेक्ट मार्क्स। 86.7 इंटू 0.8 प्लस 20 कितना हुआ, 89.36।
89.36। योर रॉ मार्क्स विच वॉज 92 कितना हो गया वो 89 हो गया। क्यों? बिकॉज ये वाला स्टैंडर्ड डेविएशन कम था। ये वाला स्टैंडर्ड डेविएशन अगर ज्यादा रहता या फिर ये अगर ज्यादा रहता, ये देखिए अगर स्कूल का एवरेज ये ज्यादा होगा या फिर ये ज्यादा रहेगा ना तो आपका मार्क्स इंप्रूव होगा। दैट मीन्स दो स्कूल्स विच आर परफॉर्मिंग बेटर, जिन स्कूल्स का एवरेज मार्क्स ज्यादा है उनका परफॉर्मेंस बेटर होने वाला है। So yes, your marks to some extent it depends on your schools. This is your final marks. आया सभी को समझ में? इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड मेथड। वापस से एक बार 2 मिनट का समरी बता रहे हैं। ओके